I wish to speak today from the book of Hebrews chapter 13. और आज इब्रानियों के 13वें अध्याय से मैं साझा करना चाहता हूँ। This chapter focuses on the practical aspects of Christian life. और ये जो अध्याय है ये मसीही जीवन के जो व्यवहारिक कुछ पहलू है उन पर जोर देता है, such as love, hospitality, purity, जैसे प्रेम है या अतिथि सत्कार है या शुद्धता है, contentment, honoring leaders, या जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होना, जो हमारे अगुवे हैं उनका आदर करना, steadfastness in doctrine, believing the right doctrine, and bearing the reproach of Christ. और सिद्धांतों को ध्यान से या दृढ़ता से थामे रहना और मसीह के पीछे चलना। All these topics are briefly covered in this last chapter of Hebrews. और ये सारी जो विषय है कुछ संक्षिप्त में उन्हें इब्रानियों के आखिरी अध्याय में उन पर जोर दिया गया है। Verses 1 to 3 deal with the love of the brethren. और पहले 3 वचन जो है वो भाइयों के प्रेम के विषय में है। We know in the New Testament, Christian love is an important subject which is taught in the scriptures. हम जानते हैं नए नियम में मसीही प्रेम ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो बाइबल में सिखाया जाता है। Jesus told, this world will know that we are the disciple of Jesus when they notice the love between Christians or love between Christian brothers and sisters. और यीशु ने कहा कि इन संसार के लोग हम जानेंगे कि हम मसीही हैं जब भाइयों बहनों के बीच के प्रेम को वो देख पाएंगे। And Bible teaches that our love should be without hypocrisy. और बाइबल हमें यह भी सिखाता है कि हमारा प्रेम बिना किसी पाखंड का होना चाहिए। Our genuine, in other words, our love should be genuine. दूसरे शब्दों में हमारा जो प्रेम है वो बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। And in other words, we can say the love inside us for any brother and sister should be more than what we really express to them. Sorry, uncle. Can you repeat? I didn't follow. Yeah, the love that is inside us should be more than what we express outside. Yes, got it. और जो प्रेम हमारे अंदर होता है, जितना प्रेम हम बाहर से दिखाते हैं उससे बढ़कर प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए किसी भाई या बहन के प्रति। So verse 1 read, let love of the brethren continue. और पहला वचन इस प्रकार से पढ़ता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। Yeah, so it is not enough that we have love of the brethren, but we should continue in them. और इसलिए पर्याप्त ये नहीं कि हमारे पास भाईचारे की प्रीति है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उस भाईचारे के प्रीति में बढ़ते ही रहे। We all, I think, we all have received the love of God through the Holy Spirit. और हम सब ने परमेश्वर के प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया है। Love of God has been poured out into your heart through the Holy Spirit. That is what Bible teaches. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उंडेल दिया गया है, यही बाइबल सिखाता है। So we have freely we have received the love of God, and we are supposed to share it with others. और बिल्कुल स्वतंत्रता से हमने परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के साथ उसको साझा करें। Next thing in verse 2 we read, do not neglect to show hospitality. दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं कि अतिथि सत्कार करना न भूलना। Hospitality is again a biblical teaching, and especially in the New Testament, New Covenant teaching. और अतिथि सत्कार करना ये भी बाइबल की एक शिक्षा और विशेषकर नए नियम की ये शिक्षा है। As we read here, some people have entertained angels without knowing it when they practiced hospitality. और जैसे कि यहाँ लिखा है कुछ लोगों ने कुछ
इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का तक आदर सत्कार किया है। Yeah, there are examples in the Bible. For example, some visitors came to visit Abraham, and he did not realize they were angels. बाइबल में भी इसके कुछ उदाहरण है। कुछ जो लोग थे वो अब्राहम के पास आए और अब्राहम खुद नहीं जानता कि वह स्वर्गदूत है। I want to read a couple of verses related to this. One is 1 Peter chapter 4 verse 9. और इसके विषय में कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 9वां वचन। 1 Peter chapter 4 verse 9. We read, be hospitable to one another without complaint. और वहां हम पढ़ते हैं बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। The word of God is so perfect. परमेश्वर का वचन कितना सिद्ध है। It is not enough to practice hospitality, but we should practice hospitality with to one another without complaint. केवल अतिथि सत्कार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिना कुड़कुड़ाए बिना शिकायत की हमें आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के प्रति अतिथि सत्कार करें। Why this phrase is added in this verse without complaint? बिना कुड़कुड़ाए ये वाक्य ये शब्द इस वाक्य में क्यों जोड़ दिए गए हैं? I think some people, maybe some Christians, we can ask whether we do that. मुझे लगता है क्योंकि कुछ मसीह ऐसा करते होंगे और हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं क्या? We may be practicing hospitality out of compulsion. और हो सकता है कि अतिथि सत्कार हम किसी जोर जबरदस्ती की वजह से करते होंगे। Some brothers and sisters visited our home. We are showing externally hospitality. और कुछ भाई बहन जो है वो हमारे घर शायद हमसे मिलने आए होंगे और हम उनको शायद अतिथि सत्कार कर भी रहे होंगे उनका। But inside, is there a complaint? पर हमारे अंदर कोई शिकायत है क्या? कोई शिकायत है क्या? Because when whoever is practicing hospitality, they know there is some inconvenience. क्योंकि जो कोई अतिथि सत्कार करता है वो इस बात को जानता है कि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में असुविधा तो है। We will have to cook some food or something. They will have to serve them. शायद हमें उनके लिए कोई भोजन बनाना होगा, हमें शायद उनकी सेवा करनी होगी। Sometimes we may have to reschedule our own programs. और हम जहाँ जाना चाहते थे, हमने जो क्रम अपने लिए रखा था कि हमें उसे आगे ढकेलना पड़ेगा शायद। So there is a sacrifice behind practicing hospitality. और अतिथि सत्कार करने के पीछे एक बलिदान करने की आवश्यकता है। So it is important that we practice hospitality with joy. और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आनंद से अतिथि सत्कार करें। Not doing that with complaining inside us. We may not be telling that, but inside there is complaining and murmuring. और हमें ये नहीं कि बाहर से करना है, बाहर से अतिथि सत्कार तो करते हैं पर अंदर से शिकायत करना, कुड़कुड़ाना है, इससे हमें बचना है। So let the Holy Spirit remind us this principle. Whenever we receive somebody, let us do it from our heart, not at all with a complaint. इसीलिए हमें सिद्धांत को याद रखिए जो पवित्र आत्मा में याद दिला रहा है कि जब कभी हमें अतिथि सत्कार करने का मौका मिले तो हम पूरे हृदय से करें, ना कि कोई शिकायत करने के द्वारा। Another verse I want to read from Romans chapter 12. एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय से verse 13. उसका 13वां वचन। We read that contributing to the needs of the saints and practicing hospitality. वहां लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई में या अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। So it is mentioned, practice as a practice should be our habit. That is something frequently we are happy to do, practicing hospitality. और यहाँ लिखा है कि पहुनाई करने में लगे रहो, मतलब ये हमारी एक आदत सी होनी चाहिए जो हम निरंतर कर रहे हैं। Yeah, I want to share this. We all like to be hosted by others. मैं इसके बारे में भी साझा करना चाहता हूँ कि हमें बहुत आनंद होता है कि हम दूसरों के घर जाए।
Yeah, we like to go visit others, and if they treat us very well, give us a good meal, receive us well, we are really happy. और हमें दूसरों के घर जाना पसंद है। अगर वो हमें अच्छा भोजन दे, हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करे, हमें बहुत खुशी होती है। And it's good to enjoy that. और ये अच्छा है कि हम उसका आनंद लें। But are we also hospitable to others? पर क्या हम भी ये कर रहे हैं क्या? हम भी दूसरों के प्रति पहुनाई करके उनका अतिथि सत्कार कर रहे हैं क्या? Because there is a principle, it is more blessed to give than to receive. क्योंकि एक सिद्धांत है कि लेने से देना ज्यादा उत्तम, ज्यादा धन्य है। It is more blessed to be hospitable to others than receiving hospitality from others. ज्यादा धन्य है, ज्यादा आशीषित बात यह है कि हम दूसरों का अतिथि सत्कार करें, इसके बजाय कि दूसरों का अतिथि सत्कार हम केवल प्राप्त करें। So let us enlarge our hearts to receive and welcome God's people, and for that may anybody, and have the humility to receive hospitality by others also. और आइए हम अपने हृदय को बड़ा करें और दूसरों के अतिथि सत्कार करें, और उसी के साथ साथ हमारे अंदर ये नम्रता भी हो कि हम दूसरों से अतिथि सत्कार को स्वीकार कर सके। Verse 4 deals with a very important subject. 13वां अध्याय जो है इब्रानियों का, उसका 4था वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में है। Marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled, because fornicators and adulterers God will judge. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। The purity or sanctity of marriage is something the New Testament so much enforces. और विवाह का जो शुद्धता, विवाह के विषय में जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में नया नियम बहुत ज्यादा जोर देता है। And the way it is written, otherwise God will judge. और यहाँ जिस तरीके से लिखा है, अगर नहीं तो परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा। Yeah, fornicators and adulterers God will judge. व्यभिचारी और परस्त्रीगामी जो है उनका परमेश्वर न्याय करेगा। So it's a very strong statement. और ये बहुत ही बलवंत ऐसा कथन है। It is very few places only that statement is there where God will judge. क्योंकि बाइबल में बहुत कम जगह ये कथन आता है कि लिखा है परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। I just want to read one verse from Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Matthew 5, 27, 29. मत्ती 5 उसका 27 से लेकर 29 वचन। Matthew 5, 27 to 29. मत्ती 5 27 से 29। Yeah, we read like this. You have heard that it was told, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with a lust for her has already committed adultery with her in his heart. यहाँ If लिखा है your कि right, yeah, if your right eye makes you to stumble, tear it out and throw it from you. For it is better for you to lose one of your parts of your body than for your whole body be thrown into hell. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। So in the New Testament, standards are very high. और नए नियम में जो स्तर, जो मापदंड है वो बहुत ऊंचे है। Here it says you have committed adultery with her in your heart. और यहाँ लिखा है कि तुम्हारे हृदय में तुमने उसके साथ व्यभिचार तुम कर चुके हो। God is expecting a great level of purity in our eyes. और परमेश्वर एक बड़े स्तर पर हमारे आंखों में शुद्धता की अपेक्षा रखता है।
verse 5. पांचवा वचन, This again, one of the beautiful theme which is described in verse 5 and 6 together. फिर एक बार नए नियम के एक सुंदर सा विषय जो है वो इब्रानियों 13 के 5वें और 6ठे वचन में उसका जिक्र किया है। Make sure that your character is free from the love of money. और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, उससे इस बात को सुनिश्चित करे। So we can see that expression, the way it is expressed. Make sure. और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कथन लिखा है। हिंदी में तो इस प्रकार से नहीं आया, पर इंग्लिश में लिखा है कि इस बात को सुनिश्चित करो। Yeah, make certain that your character is free from the love of money. इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित करो कि तुम्हारा जो चरित्र है वो लोभ रहित हो, या इंग्लिश में लिखा है पैसे के प्रेम से स्वतंत्र हो। Yeah, God wants his children to see that their character is free from the love of money. परमेश्वर चाहता है कि उसके संतानों के जो चरित्र है वो पैसे के प्रेम से बिल्कुल स्वतंत्र हो। And it says about contentment, being content with such things as you have. और फिर लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, या इंग्लिश में लिखा है उसी में संतुष्ट या तृप्त रहो। Yeah, this contentment is again a New Testament teaching. फिर एक बार ये संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, ये एक नए नियम की एक शिक्षा है। We read in 1 Timothy chapter 6 that godliness with contentment is great gain. और पहला तिमुथियुस उसके 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं कि संतोष सहित भक्ति या ईश्वरीय होना ये बड़ी कमाई या बड़े लाभ की बात है। So God wants us, whatever He has given at this point of time, He is expecting us to be content and grateful and satisfied. और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ उसने हमें इस समय दिया है उसी में हम संतुष्ट रहे, आभारी रहे और तृप्त रहे। Maybe if you are content and if you are grateful now, God will be able to entrust with us more. और अगर आप इस समय संतुष्ट रहो, आप धन्यवादी रहो, तो शायद परमेश्वर हमें और भी दे पाएगा। And there is a powerful promise attached with this. और इसी के साथ साथ एक बहुत ही बलवंत जो प्रतिज्ञा है वो जोड़ी गई है। God has said in for our material needs, He will never desert us, He will never forsake us. और बाइबल में हमें कहा, परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारी भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में कि वो हमें कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। Yeah, so what a powerful promise is that. It's like having a joint account with God. और कैसा बलवंत एक वायदा ये है, मानो परमेश्वर के साथ हमारा जॉइंट अकाउंट या कोई संयुक्त खाता मानो हो। So you can imagine having a joint account with a very rich person. और आप कल्पना करके देखिए कि आपका किसी बड़े ही अमीर व्यक्ति के साथ कोई संयुक्त खाता है, तो That person is telling you, don't worry, my account there is money. You just join my. I make you to join in my account. और वो व्यक्ति कहता है कि देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे खाते में पैसा है, तुम्हारा खाता और मेरा खाता को हम जोड़ लेंगे। So God is giving that kind of guarantee. I will never desert you. I will never forsake you. और इस प्रकार की गारंटी मानो परमेश्वर हमें दे रहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। And therefore, we can say confidently, the Lord is my helper. I will not be afraid what man shall do to me. और वहां इसलिए हम कह सकते हैं कि 6ठे वचन में इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 3 things are written. One is that assurance that Lord is my helper, not a man. 3 चीजें वहां लिखी गई है। सबसे पहले प्रभु मेरा सहायक है, ना कि कोई मनुष्य। When I am need, I look to God, not a man. जब मेरी आवश्यकता है तो मैं प्रभु को देखता हूं, किसी मनुष्य को नहीं। Second thing is I will not be afraid. दूसरी चीज, मैं न डरूंगा। And third thing is what man can do to me. तीसरी चीज वहां लिखी है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। In verse 7, there is an exhortation.
relate to those who lead us. 7वें वचन में एक उपदेश है उन लोगों के विषय में जो हमारी अगुवाई करते हैं। Remember those who lead you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। A few things are written here in a combined fashion. और कुछ चीजें मिलाकर यहाँ लिखी गई हैं। One is those leaders who has led us, सबसे पहले तो वो अगुवे जिन्होंने हमारी अगुवाई की है and those who taught us the word of God, और जिन्होंने हमें परमेश्वर के वचन को सिखाया है, and it is combined with their life. और उसी के साथ साथ उनके जीवन से उसे जोड़ा गया है। Consider, observe their conduct, their life. उनके चाल चलन को देखो, उनके जीवन को देखो, उनके बर्ताव को देखो। If their teaching and if their leadership and if their conduct or character is all going together, we can imitate their faith. अगर उनकी शिक्षा, अगर उनकी अगुवाई और उनका चाल चलन ये सब एक साथ जाता है तो हम उनके विश्वास का अनुकरण कर सकते हैं। In other words, those who are following Jesus Christ, we can follow them. दूसरे शब्दों में जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। Paul is telling in one place, as I follow Jesus Christ, you follow me. पौलुस एक जगह कहता है जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे तुम मेरा अनुसरण करो। It also highlights the responsibility for everyone, especially those who are in leadership, to be an example for others. और ये इस जिम्मेदारी पर भी जोर डालता है। ये जिम्मेदारी विशेषकर उनकी जो अगुवाई करने में है, अगुवाई करते हैं कि उन्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है। It is not enough to teach and it is not enough to lead, but we should also be able to say, follow my example, follow my faith, follow my life. किसी को केवल सिखाना पर्याप्त नहीं है, किसी की अगुवाई करना पर्याप्त नहीं है, पर हम ये कह पाने चाहिए कि मेरे जीवन का अनुसरण करो, मेरे विश्वास का अनुसरण करो, मेरे चाल चलन का अनुसरण करो। Verse 8, we read, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. 8वें वचन में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। Yeah, that is an amazing statement, the unchangeableness of our Lord. और ये एक अद्भुत कथन है हमारे प्रभु का कभी न बदलने वाला स्वभाव। Yeah, he is not a man, he is unchangeable. वो मनुष्य नहीं, वो कभी न बदलने वाला है। He'll never change his word. वो कभी अपने शब्दों को नहीं बदलेगा। He will never change his promises. वो कभी अपने वायदों को नहीं बदलेगा। In another place, there's an expression, there is no shadow or turning in him. दूसरे जगह एक ऐसा कथन है कि उसमें बदलने की कोई मानो परछाई तक नहीं है, या अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया नहीं पड़ती। So we can be really grateful we have such a Lord and Savior and Master and Redeemer who is the same yesterday, today and forever. और हम इतने धन्यवादी हो सकते हैं कि हमारा एक ऐसा प्रभु छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Verse 9 speak about a warning that we should not be carried away by varied and strange teachings. 9वां वचन हमें बताता है कि हमें नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से हम भरमाए न जाए, but we should believe and follow a good teaching, good doctrine. पर आवश्यक ये है कि हम अच्छे जो सिद्धांत है, जो सही सिद्धांत है, उसका हम अनुसरण करें। The doctrine which will strengthen our heart by grace. जो सिद्धांत हमें हमारे मनों को अनुग्रह से दृढ़ करेगा या बलवंत करेगा। And that is a test. If the doctrine what we follow, is it strengthening our heart by grace. और ये एक परीक्षा है कि जिस सिद्धांत का हम अनुसरण करते हैं क्या वो अनुग्रह से हमारे हृदय को दृढ़ कर रहा है, क्या बलवंत कर रहा है क्या। There are many strange doctrines around we can hear. आज भी हमारे आसपास कई अजीब और विचित्र से सिद्धांत हम सुन सकते हैं। But we should follow
doctrine which help us or lead us into godliness. पर हमें उस सिद्धांत को सुनना या उसका अनुसरण करना है जो हमारी ईश्वरीय होने में सहायता करे या हमारी ईश्वरीय होने तक हमें ले जाए. That principle, a tree is known by its fruit, so a doctrine also should be known by its fruit. और वो सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है. बिल्कुल वैसे ही एक सिद्धांत भी अपने फल से जाना जाता है. Yeah. In those verses 10 to 14, और 10 से लेकर 14 वचनों में it speaks about the reproach of Christ. और मसीह की निंदा की वहां बात की गई है. Verse 13 we read, so let us go out to him outside the camp bearing his reproach. 13वें वचन में लिखा है कि इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले. All these 2000 years since the Lord came incarnated as man came upon this earth. Sorry uncle, can you repeat? All these 2000 years since the Lord came upon this earth, इन सारे 2000 वर्षों में जब से प्रभु इस पृथ्वी पर आया है, all those who follow Jesus Christ, there is an element of reproach. जो कोई यीशु मसीह या प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ एक निंदा उनके साथ जुड़ी हुई होती है. There is a share of reproach of Christ. मसीह की निंदा का एक हिस्सा है. And we should be willing and glad to receive the reproach of Christ. और हमारी इच्छा होनी चाहिए और हम खुश होने चाहिए मसीह की उस निंदा को प्राप्त करने के लिए. We read a passage in Acts of the Apostles. I'm not reading that passage. प्रेरितों के काम में हम ऐसा पढ़ते हैं. मैं अब उसकी ओर नहीं मुड़ रहा. When the apostles were humiliated and even physically violated by some religious people. जहां कुछ धर्मी लोगों के द्वारा जो प्रेरित थे उन्हें काफी अपमान का भी सामना करना पड़ा था और शारीरिक तौर पर उन्हें मार तक पड़ी थी कुछ धार्मिक लोगों की वजह से. Then they were sent out warning that you should never follow or preach Jesus Christ. और फिर उनको ये धमकी देकर भेज दिया गया कि इन यीशु मसीह के बारे में कोई प्रचार कभी ना करना. So it is mentioned their thoughts when they are going away after being so much humiliated and suffered violence. और जब अपमानित वे किए गए थे और उन्हें पिटवाया गया था उसके बाद उन प्रेरितों के जो विचार है उनका वहां वर्णन किया गया है. It is mentioned that they rejoiced in that they were counted worthy to suffer shame for the name of the Lord. और वहां लिखा है कि वे इस बात से आनंदित होकर चले गए कि वे उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे. Yeah, they took it. It is a privilege. What a privilege it is. और उन्होंने इस बात को एक सौभाग्य समझा कि कितना बड़ा सौभाग्य ये है. To suffer shame for the name of the Lord. कि प्रभु के नाम के लिए हमें शर्म, हमें लज्जा का सामना करना पड़े. It is good that we keep that in our heart. When you really follow the Lord wholeheartedly, there is a share of reproach. ये अच्छा है कि हम अपने हृदय में इसे संजोए रखें कि जब हम पूर्ण हृदय से प्रभु की सेवकाई करते हैं तो कोई ना कोई निंदा होती है उसमें. Sometimes from the world, कभी-कभी संसार के ओर से, sometimes even so-called Christian religious people. कभी-कभी तथाकथित जो मसीही धर्मी लोग हैं उनके द्वारा भी. So it's good that we are able to take it joyfully. और इसलिए अच्छा है कि हम इसे आनंद से ले पाए. And even to consider it is my privilege. और उसी के साथ साथ हम ये समझे कि ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. We can think our Lord suffered so much reproach. हम सोच सकते हैं कि हमारे प्रभु ने कैसी निंदा सही. So it is a privilege for me to take a little share of that in my own life when I follow him. और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसी में से कुछ हिस्सा आज मैं सह लूं जब मैं उसका अनुसरण कर रहा हूं. तो Verses 15 and 16. 15 और 16 वचन. We read, through him let us continually offer up a sacrifice of
a sacrifice of praise to God, that is a fruit or lips that gives thanks to his name. यहाँ लिखा है कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। Yeah, here the praise to God is mentioned as a sacrifice. परमेश्वर के प्रति हमारी स्तुति को एक बलिदान कहा गया है। Why it is mentioned as a sacrifice? क्यों इसे बलिदान कहा गया है? Because when things are going good, it is easy to praise God. क्योंकि जब चीजें बिल्कुल अच्छे से चलती है तब परमेश्वर की स्तुति करना बहुत आसान है। But God wants us to praise him at all time. पर परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी स्तुति करें। Praise him for who he is. वो जो है उसके लिए हम उसकी स्तुति करें। See, thanksgiving is something we thank God for something which we have received. धन्यवाद देना ये इसका मतलब ये है कि हमने कुछ प्राप्त किया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। But praising is for exalting his name because recognizing who he is. पर स्तुति करना ये उसके नाम को ऊंचा उठाना है, यह पहचानते हुए कि वो कौन है। Yeah, we can praise the Lord for his sovereignty. हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं उसकी सर्वसत्ता के लिए। We can praise the Lord for the everlasting love with which he loved us. और जो अनंत प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया उसके लिए हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। We can praise the Lord because all authority is given to him on heaven and earth. हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि सारे पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार उसे दिया गया है। So it is sometime when we don't feel also we should learn to praise God. और कभी-कभी जब हमें स्तुति करने की इच्छा नहीं होती तब भी हमें स्तुति करना सीखना चाहिए। Everything may not be very favorable. और सारी चीजें बहुत ज्यादा हमारे अच्छे के लिए या हमारे अनुकूल नहीं होंगी। When we may be passing through some hardship. और जब हम कुछ कठिनाई का सामना करते हैं तो We have some shortages. जब हमारे पास कुछ कमी घटी होती है तो Some of our prayers are not yet answered. जब हमारे प्रार्थनाएं अब तक सुने नहीं गए हैं तो But we should learn to praise God even during such times. पर हमें फिर भी सीखना है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें ऐसे समयों में भी। When we have suffered some loss, even then we should learn to praise God. जब हमने कुछ हानि सही है तब भी हमने परमेश्वर की स्तुति करना सीखना है। We know in the Acts of the Apostles, when we read when the apostles were put in prison, they were praising God in the prison. और प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि जब उन प्रेरितों को बंदी गृह में डाल दिया गया वहां भी वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Even when their bodies were bruised and they are in chains, they praised God. जब उनके शरीर पीटे गए थे, दर्द में थे, तब भी वे जंजीरों में थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। So that is why it is mentioned sacrifice of praise to God. इसी वजह से लिखा है परमेश्वर के प्रति स्तुति का बलिदान। See, when everything is going good, everybody can praise God. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हर कोई परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। But when we are passing through some testing time, then also we should learn to praise God. पर जब हम कोई बहुत ही परीक्षा के कठिनाई के समय से गुजरते हैं तब भी हमें सीखना है परमेश्वर की स्तुति करना। Because even though we pass through some difficult situation, as we read before, Jesus Christ the same yesterday, today and forever. क्योंकि जब हम कोई कठिनाइयों से जाते हैं, कुछ बहुत ही समस्याओं से गुजरते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, मसीह यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Whenever we don't sometimes understand the purposes of God, still we should learn to praise God. जब हमें कई बार परमेश्वर के उद्देश्य नहीं समझ आते तब भी हमें सीखना है उसकी स्तुति करना। We also read the fruit of lips and give thanks to him. और हम यहाँ भी पढ़ते हैं हमारे होठों का फल जो है उसके द्वारा हम उसके धन्यवाद देते हैं। And we read in verse 6, do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. अगले वचन में हम पढ़ते हैं भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Yeah, doing good and sharing also there is a sacrifice. और भलाई करना या उदारता या दूसरों से साझा करना, दोनों में एक बलिदान है। Just like praising is a sacrifice. बिल्कुल जैसे स्तुति में एक बलिदान है। So, and
God is well pleased in these kind of sacrifices. और पौलुस और परमेश्वर इस प्रकार के बलिदानों में बहुत संतुष्ट होता है, बहुत खुश होता है। Verse 17 we read, obey your leaders and submit to them. 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। And we must respect, value, and submit those whom God has placed above us. और जिन लोगों को परमेश्वर ने हमारे ऊपर, हमारे अधिकार में रखा है, उनके प्रति हमें अधीन रहना है, उनका मूल्य करना है और उनका आदर करना है। They have a spiritual authority over us. उनके पास हमारे ऊपर एक आत्मिक अधिकार होता है। And every Christian should know under whom they are, who is their authority, spiritual authority. और हर एक मसीही इस बात को जानने पाए कि उनका आत्मिक अधिकारी कौन है, To whom they are supposed to be submitted. किसके प्रति उन्हें अधीन होना है। No, in the nowadays we can see, we can say independent groups and even people who think that they don't need to be under subjection to anybody. इन दिनों हम देखते हैं कि बहुत ही स्वतंत्र ऐसे झुंड आ जाते हैं और ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं। That is not God's way. ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है। Every one of us should know we are accountable to God and also some human authorities, spiritual authorities God has kept above us. हर व्यक्ति इस बात को जाने कि हम परमेश्वर के प्रति भी जवाबदेह हैं और उसी के साथ साथ कुछ मनुष्य जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखे हैं उनके प्रति भी हम जवाबदेह हैं। Some Christians are like street children. कुछ मसीह जो होते हैं वो सड़क पर जो बच्चे होते हैं बिल्कुल उनके समान होते हैं। In their case, unfortunately, they probably may not have any parents. और जो सड़क पर रहने वाले बच्चे होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण उनमें से कईयों के माता पिता नहीं होते होंगे। And they are not accountable to anybody. और इसी वजह से वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। They do many dangerous things and there is no protection for them. वे कई खतरे से भरे चीजें करते भी हैं और उनके लिए कोई सुरक्षा है ही नहीं। We should not be like a spiritual street children having no accountability to anybody. और हमें आत्मिक सड़क पर रहने वाले बच्चों के समान नहीं होना है। इसका मतलब है कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम किसी के प्रति कोई हमारी जवाबदेही नहीं है। There is a protection for us when you obey our leaders and willingly, joyfully be submitted to them. हमारे लिए एक सुरक्षा होती है जब हम अपने अगुओं की बात मानते हैं और स्वेच्छा से उनके अधीन रहते हैं। It is mentioned that they keep watch over your souls. और यहाँ ये भी लिखा है कि वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। And they have to give an account to God. और फिर लिखा है उन्हें परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए लेखा देना पड़ेगा। Yeah, leaders above us are also accountable to God. They have to give an account about us to God. जो हम पर अगुए हैं वे भी परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है, हम उनके प्रति है, वे परमेश्वर के प्रति है। And elder brothers, elders and those who have some kind of responsibility also should take this seriously. और जो प्राचीन भाई है, जो प्राचीन है और जो भी भाई कोई प्रकार की जिम्मेदारी उठाते हैं उन्हें भी इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। Knowing that we are accountable to God about the people whom God has entrusted to us. इसका मतलब हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेह है उन लोगों के लिए जिन लोगों को परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है। I remember when I was a young person, this submission to authority is something which God has very powerfully convicted me. और मुझे याद है जब मैं एक जवान व्यक्ति था तो अधिकार के प्रति अधीन होना ये एक ऐसा सिद्धांत है जो परमेश्वर ने बहुत ही बलवंत तौर पर मुझे एहसास दिलवाया। I found that it is written in at least in 3 places. और मैंने देखा कि लगभग कम से कम 3 जगहों पर ये लिखा गया है। Other than in Hebrew, this verse which we just now read. और जो वचन हमने अभी पढ़ा उसके अलावा कम से कम 3 अलग-अलग जगहों पर ये लिखा हुआ है। That is in 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 and 13. सबसे पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 12 और 13 वचन। I'm not reading that. Those who are interested can read it separately. मैं अभी उसे नहीं पढ़ रहा, जिनकी दिलचस्पी है वो बाद में से पढ़ सकते हैं। And 1 Timothy again chapter 5 verses 17 and 18. पहला तिमुथियुस उसका फिर एक बार 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। And also 1 Peter again chapter 5 verses 5 and 6.
और पहला पत्रस फिर एक बार 5वां अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। Yeah, 1 Thessalonians 5, 1 Timothy 5, and 1 Peter 5. पहला थिस्सलुनीकियों 5, पहला तीमुथियुस 5, पहला पत्रस 5। It was easy to remember. ये याद रखना आसान हो जाएगा। I used to remember and read and meditate those verses. मैं इसे याद रखता था, इन वचनों को पढ़कर उस पर मनन करता था। So God will also approve us if you learn to live under submission to spiritual authorities. परमेश्वर भी हमें स्वीकार करेगा अगर हम आत्मिक अधिकार के अधीन जीवन जीना सीख ले तो। In verses 20 to 21, there is a concluding blessing, we can say. और 20 से 21 वचन में एक अंत की आशीष है, हम कह सकते हैं। We read there, may God of peace equip you in every good thing to do his will, working in us that which is pleasing in his sight through Jesus Christ. अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु की जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। Verse 21, equip you in every good thing to do his will, working in us that which is pleasing in his sight through Jesus. 21 वचन, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Just one more thing in verse 22. एक और बात 22 वचन में, This writer is saying, I urge you, brethren, bear with this word of exhortation. हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो। So this writer is encouraging. I have written so many things. और ये जो लेखक है, ये दूसरों को प्रोत्साहित कर रहा है कि देखो मैंने कई बातें यहाँ लिखी है। I want to urge you something. मैं तुमसे कोई बात की मैं विनती करना चाहता हूँ। There may be some hard truths I taught you. कुछ कठोर सत्य हो सकते हैं जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। It is not just some words of encouragement and comfort. और यहाँ केवल प्रोत्साहन के और सांत्वन के शब्द ही थे, ऐसा नहीं है। I also spoke many serious matters. इसी के साथ साथ मैंने कई गंभीर मामलों को बारे में भी साझा किया, including some warnings and some words of correction. इसमें कोई चेतावनियां शामिल थे और कुछ सुधार के शब्द भी थे। Bear with it. और उसे सह लो। Bear with this word of exhortation. और इस उपदेश को सह लो। It will benefit you. वो तुम्हारा फायदा करेगा, लाभ करेगा। So when God speaks to us, there is a need to patiently bear with the word of exhortation. और जब परमेश्वर हमसे भी बात करता है, हमें भी आवश्यकता है कि बड़े धीरज से हम उस उपदेश के वचन को सह ले। Yeah, it is easy to despise it or don't take it seriously. बहुत आसान है उसे तुच्छ जानना या उसे गंभीरता से न लेना। Then we will not make a progress. फिर अगर ऐसा है तो हम कोई उन्नति नहीं करेंगे। If you bear with it, bear with the word of exhortation, we will bear fruit in our life. अगर आप उसको सह लोगे, इस उपदेश के वचन को सह लोगे, तो हम अपने मसीही जीवन में फल लाएंगे। So last verse 25, grace be up with you all. अंतिम वचन 25वां वचन, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। You know, in the New Testament, grace means, what is the meaning of grace? और हम सब जानते हैं कि नए नियम में अनुग्रह का मतलब क्या है। In simple way, we can say God's help in all situations. साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सब परिस्थितियों में परमेश्वर की सामर्थ्य, सहायता। God's enablement in all situations. परमेश्वर हमें जो सक्षम करता है सब परिस्थितियों में। God supporting us and empowering us to obey Him and live for Him. परमेश्वर हमें हमारा समर्थन करता है और हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसके लिए जीवन जिए। And God helping us to live an overcoming life. और परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम एक जयवंत जीवन को जिए। And God helping us to overcome sin. और परमेश्वर हमारी सहायता करे पाप पर विजय पाने के लिए। That is a grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। He is wishing grace of God be with you all. और वो कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। In the same way, we ourselves receive that the grace of God be with us all. और हम सब इसे स्वीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, होता रहे। So this book of Hebrews
in the earlier chapters, it is mentioned that Jesus Christ is superior to all angels, Moses, and old covenant priests, etc. और इब्रानियों की इस पुस्तक में शुरुआत में लिखा है कि यीशु मसीह मूसा से, स्वर्गदूतों से और सारे पुरानी वाचा के लोगों से श्रेष्ठ है। And he's pictured as a perfect high priest. और उसे एक सिद्ध महायाजक के तौर पर उसका चित्रण पेश किया है। He is pictured as a sacrifice for us. और वो हमारे लिए एक बलिदान के तौर पर एक चित्र प्रस्तुत किया है। And more than anything, Jesus is pictured as a forerunner for us. किसी भी चीज से बढ़कर यीशु मसीह हमारा अग्रदूत, हमारा अग्रगामी है, ये चित्र पेश किया है। So this Hebrews encourages us to hold fast to our faith. और इब्रानियों हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हमारे विश्वास को थामे रहे। It warned us about falling away. और उसने हमें चेतावनी दी कि हम परमेश्वर से दूर ना भटक जाए या गिर ना जाए। And it encourages even as in Hebrews chapter 11, even in trials, persevere through trials. और वो हमें प्रोत्साहित करता है, जैसे इब्रानियों 11 में है कि क्लेशों में, कष्टों में भी हम विश्वास से धीरज धरे रहे। Hebrews 11 and 12. इब्रानियों 11 और 12 में। And also looking unto Jesus as our ultimate example. और उसी के साथ साथ यीशु की ओर देखते रहना जो हमारा एक उदाहरण है। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Amen. आमीन।